All right, maintain silence. Very good morning to everyone. So, how many topics have been started for you all in chemistry? One. Which one? Halogen derivatives. Okay. थर्मो हो गया है. This is a topic of your paper 1. Okay. Now over here, when you use this term electro means related to? It is electrical. And your chemistry will mean what? Chemical. So what we are learning in this topic is basically the interconversion. What are we learning in this topic? Interconversion between chemical and electrical forms of energy. It deals with interconversion between chemical and electrical forms of energy. So electrochemistry basically deals with what? Interconversion between chemical and electrical forms of energy. So आप chemical को electrical में convert कर सकते हो and आप electrical को chemical में convert कर सकते हैं. Interconversion. Either of the two is possible. Either you can convert electrical energy into or you can convert chemical into. Now where does this interconversion takes place? Where does this interconversion take place? ये जो interconversion है from electrical to or from chemical to, where will it take place? किधर ये कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ पर नोटिस करोगे? Inside a cell. Inside a cell. So this interconversion is noticed where? Inside. So what you must remember, the interconversion takes place inside a cell. It takes place inside a cell. Understood? Note this down quickly. So what is a cell? What do you mean by the term cell? Cell is a device where the
interconversion, where the interconversion between chemical and electrical forms of energy takes place. Please do not talk. I am using the word please. So cell is a device where interconversion between अच्छा, सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं. व्हाट आर दे? बोलो बोलो. कैथोड एनोड नहीं. एवरी सेल comprises of two components. What are they? Every cell is made up of two components. एक तो इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट. अगर क्वेश्चन होता व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड और आप बोलते एनोड एंड कैथोड तो आंसर करेक्ट होता. सेल का दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोड के दो टाइप्स हैं, एनोड और कैथोड. वैसा ही इलेक्ट्रोलाइट का भी दो कैटेगरीज है, गुड इलेक्ट्रोलाइट एंड बैड इलेक्ट्रोलाइट. या फिर उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो सिर्फ इलेक्ट्रोड्स लेकर सेल नहीं बन सकता या सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट लेकर सेल नहीं बन सकता. आपको दोनों चाहिए, इलेक्ट्रोड भी चाहिए और. तो अभी इलेक्ट्रोड क्या है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड, द पाथ ओवर विच movement of electrons takes place. Please understand this. Path over which movement of electrons takes place. Electrode वो रास्ता है जिस पे चलकर इलेक्ट्रॉन या तो सेल के अंदर आएगा या फिर सेल के बाहर जाएगा. Electrode, it is the path over which movement of electrons take place. Now either those electrons will move inside the cell or they will move outside the cell depending upon the type of cell. ये सेल के टाइप पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पे क्या होने वाला है. इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स चलकर सेल के अंदर आ जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स चलकर सेल के बाहर चले जाएंगे. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? वेरी सिंपल आंसर. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? द केमिकल ऑफ द सेल. Chemical is electrolyte. Chemical of the cell is electrolyte. Chemical of the cell is electrolyte. Wait. कभी भी आता है. This is clear? ये zoom in कैसा होएगा? मतलब clear? Wait.
Now what are the two types of electrode? Anode and what are the two types of electrolyte? Good electrolyte, also known as strong electrolyte, and bad electrolyte, also known as bad electrolyte is also known as weak electrolyte. This is clear to everyone? Understood to everybody? Note this down quickly. जगह है क्या वो बच्चे के बैठने के लिए जो बाहर रखा हुआ है? Is it done? Now what do you mean by an anode? What do you mean by the term anode? एनोड का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों को दैट इट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. यस और नो? विच इज रॉन्ग? इलेक्ट्रोड का आइडेंटिफिकेशन उस पे प्रेजेंट चार्ज से नहीं होता. इट डजंट हैपन विद द चार्ज. ओके, एनोड इज व्हाट? The surface over which we notice oxidation. The surface over which we notice oxidation. That is called anode. The surface over which we notice oxidation. ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, loss of increase in अगर आपको एक सरफेस पे इनमें से कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट दिखता है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट दिखता है, इट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन. तो ऑफकोर्स इसमें से कोई एक कंडीशन दिखेगा तो ऑक्सीडेशन ही रहेगा. बट सरफेस क्या है? सरफेस इज एनोड. तो बेसिकली रिमेंबर दैट एनोड may be a positive or a negative electrode. It may be a positive or it may be negative. It may be positive or it may be negative. उस पे प्रेजेंट चार्ज का उसके आइडेंटिफिकेशन से कोई लेना देना. क्लियर? Note this down fast.
Now what is a cathode? कैथोड इज ऑपोजिट ऑफ एनोड, इतना तो पता है। तो एनोड पे क्या नोटिस कर रहे थे, कैथोड पे क्या the surface over which we notice. And what do you mean by reduction? Gain of electrons, loss of oxygen, decrease in oxidation number. So can we classify a cathode on the basis of charge? No. So cathode may be positive or it may be positive or understood. Cathode may be positive or clear. What do you mean by a good electrolyte? Good electrolyte means what? गुड इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट डज दिस मीन? गुड इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट डज इट मीन? गुड इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मीनिंग क्या है? Any electrolyte that dissociates quickly and completely, that dissociates to give large number of ions in a short interval of time. Large number of ions in a it will be called as a good electrolyte or a strong. तो उसके नाम में वर्ड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग. सो व्हेन यू से स्ट्रॉन्ग, व्हाट यू एक्चुअली मीन? समथिंग दैट डज नॉट ब्रेक easily. But here strong means something that will break and separate easily and completely. Understanding? बच्चे लोग इसके वजह से ही कंफ्यूज हो जाते. They feel that good electrolyte cannot be a strong electrolyte because electrolyte is supposed to dissociate, separate, form ions of opposite charge. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये तो टूटेगा ही नहीं. टूटेगा नहीं तो मुझे आयंस नहीं मिलेंगे. ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स it is an electrolyte which will dissociate quickly and to give in example. एग्जाम्पल क्या होगा इसका? क्लासिकल एग्जाम्पल NaCl. अनदर एग्जाम्पल H2SO4, HCl, KCl,
CaCl2, MgCl2. These are all strong electrolytes or clear? You all have how many lectures in a day? Only one? एक ही लेक्चर? कुछ कॉलेजेस के एग्जाम चालू हैं। कौन है ये कॉलेजेस? हो गया लिख के? फास्ट लिखना चाहिए। यस और नो? What do you mean by a bad electrolyte or a bad electrolyte or a weak electrolyte? What do you mean by that? Any electrolyte which dissociates slowly and feebly. Slowly and feebly. Feebly means क्या पता है? अब आपको लगता होगा सर उधर फास्ट एंड क्विक यूज किया था वर्ड, तो इधर स्लो एंड इनकम्प्लीट रहना चाहिए, है ना? उधर फास्ट था, क्विक था, कंप्लीट था, इधर स्लो है और इनकम्प्लीट रहना चाहिए ना। ये नया नया वर्ड यूज करके हम क्यों डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं? फीबली डज नॉट मीन इनकम्प्लीट। फीबली का मीनिंग क्या होता है? नेग्लिजिबल। इनकम्प्लीट मतलब क्या? आधा अधूरा, है ना? द वर्क इज इनकम्प्लीट मतलब वर्क स्टार्ट हुआ है, कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है एंड कुछ हद तक बाकी है। सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन एंड सम अमाउंट ऑफ वर्क इज इनकम्प्लीट, इट्स नॉट कंप्लीट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और बैड इलेक्ट्रोलाइट्स दे विल डिसोसिएट स्लो। एक तो डिसोसिएशन कैसा है? स्लो है। दूसरा डिसोसिएशन इनकम्प्लीट नहीं है, डिसोसिएशन है ना फीबल है। फीबल मीन्स व्हाट? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। 10 grams of weak electrolyte, 10 grams of how many grams? In 1 liter water. In 1 liter water मतलब वाटर बहुत ज्यादा है एंड इलेक्ट्रोलाइट बहुत, बट वो 10 ग्राम में से कितना डिसोसिएट होएगा पता है? 10 में से कितना डिसोसिएट होएगा? 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम डिसोसिएट तो हुआ है लेकिन एकदम नेग्लिजिबल, ना के बराबर। अंडरस्टैंडिंग? तो इसके लिए इधर आप वर्ड इनकम्प्लीट यूज नहीं कर सकते हो। आपको क्या बताना है? एक तो स्लो डिसोसिएशन, एक तो डिसोसिएट होने को बहुत ज्यादा टाइम लग गया और डिसोसिएशन भी बहुत वेरी स्मॉल। द डिसोसिएशन इज ऑल्सो वेरी फीबल। फीबल का मीनिंग क्या होता है? फीबली मीन्स
negligibly. To give very less number of ions in a very large इंटरवल ऑफ वेरी लार्ज इंटरवल. एक तो बहुत थोड़ा डिसोसिएशन है और वो थोड़ा सा डिसोसिएट होने के लिए भी बहुत सारा टाइम लग गया. इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? कौन है? एसिडिक एसिड. इट्स अ वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट. या फिर अमोनियम फॉर्मेट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. सिंपल एग्जाम्पल चाहिए, NH4OH, weak, it will dissociate to a very small extent. देखो ठीक है. इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम क्या है? अमोनियम. और इसका अमोनियम. क्लियर है इतना? श्योर? 100%? Sodium bicarbonate is a salt. It is not an acid or a base. It is a salt of a strong base and a weak acid. Strong base ना, sodium ना. No, it is a salt. So salt में आपको बताना पड़ेगा कि, और वो एक ऐसा salt है जो good and bad का combination. तो it's a, हाँ, सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड अ बेस. हम आयोनिक इक्विलिब्रियम नाम के एक चैप्टर में पढ़ेंगे जो आपके 12th के ही सिलेबस में. पूछो यार, क्या डाउट है? एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अभी स्टार्ट होने वाला है जिसको ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा. बीच में फिर कुछ डिस्टर्बेंस मत करना क्रिएट. बोलो, पूछना है कुछ? नहीं? ओके, पे अटेंशन. अच्छा, हम सब ने एक सेल पढ़ा है, एक टाइप का सेल, व्हेन वी वर स्मॉल, इन 9th और इन 10th स्टैंडर्ड. ओके, यस और नो? 7:30 का लेक्चर था, यस और नो? 7:15 को सो के उठा ना तू? 7:10. तेरा घर क्लास से कितने दूर है बता? 15 मिनट ना. मतलब तू 7 बजे के तो बाद ही उठा है तू, इतना तो मैं श्योर हूँ. खा इसके सर की कसम.
सवाल फर्स्ट बेंच पे बैठ के ही स्ट्रगलिंग टू कीप हिज आईज ओपन। थोड़ा टाइम से उठ जाए अगर। हाँ 7:30 I'll tell you as it is late. See, don't do all this. Don't crack cheap jokes. Okay. Get up on time, na. 7:30 is as it is a late schedule. Actually, your lectures can start at 7 o'clock. It's starting at, yeah, it can start at 7. They are still starting at 7:30. On top of that, you will come with all these sleepy eyes and sit on the first bench and sleep. Okay, so the point is हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा है। अरे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, beaker, in the beaker there is water, we put some salt, we stir it with a spoon, we add a anode and a cathode, then the salt will dissociate into Na plus and Cl minus। पढ़ा है ना ये कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम external source, electrical energy from brings about chemical changes inside the cell, brings about concept पे ध्यान दो। बीकर है, बीकर में पानी है, पानी में तुमने नमक डाल दिया, नमक डालकर उसको स्पून से, तो क्या इतना कर देने से वो जो नमक है, सॉल्ट है, NaCl है, वो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा? विल इट सेपरेट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस? विल इट सेपरेट? या तो यस बोलो या नो बोलो, दो ही पॉसिबिलिटी है। नो। व्हाट विल हैपन? इट विल गेट डिसॉल्व। डिसॉल्व होना मतलब क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्या हो गया? डिसोसिएट। डिसोसिएट कब होगा? जब हम उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। कितने इलेक्ट्रोड्स? और वो इलेक्ट्रोड्स पे क्या होगा? चार्ज। कोई तो एक होगा जो पॉजिटिव होगा, कोई तो एक होगा जो अंडरस्टैंडिंग। देखो NaCl ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है? आयोनिक। इतना तो हमने पढ़ा है। तू बार बार पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है? बाद में बता देना, कंसेप्ट पे ध्यान दे। NaCl आयोनिक है, मतलब एक Na प्लस एक चिपका हुआ है। किसको? एक Cl माइनस को। Na प्लस 1 इज स्टक टू Cl माइनस 1। और ऐसा एक NaCl नहीं है, अनेक NaCl है। किसमें? बीकर। बीकर में ना पानी है, पानी के अंदर आपने सॉल्ट डालकर क्या किया है? उसको डिसॉल्व। आपने क्या किया है? तो ऐसे बहुत से NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक Na प्लस एक Cl माइनस से चिपका हुआ है। अब जब इसमें हम इलेक्ट्रोड डाल देंगे, इलेक्ट्रोड जो कि एक्सेसिवली पॉजिटिव है या फिर एक्सेसिवली, क्यों है वो एक्सेसिवली पॉजिटिव या एक्सेसिवली नेगेटिव? क्योंकि हमने उसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और नेगेटिव टर्मिनल बहुत ही ज्यादा। तो Na प्लस, इसको पानी के अंदर कौन दिखाई दे रहा है? कैथोड। ये चिपका हुआ है किससे?
Cl माइनस से, लेकिन उसको कौन दिखाई दिया अभी? कैथोड। और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज कितना है? -100, तो Na प्लस क्या करेगा? Cl माइनस को छोड़कर जाकर कैथोड पे अटैच हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, योर इलेक्ट्रोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर dissociation of NaCl. Electrode is responsible for, repeat, electrode is responsible for dissociation of NaCl. Who is responsible? Why? Because it is having excess charge. एक्सेस चार्ज। Na प्लस किसको चिपका हुआ है? Cl माइनस को। Na प्लस पे कितना चार्ज? +1। Cl माइनस पे कितना चार्ज? -1। लेकिन अब उसी Na प्लस को कौन दिखाई दे रहा है? कैथोड। और कैथोड का नेगेटिव चार्ज कितना है? -100। So cathode is much more negative than Cl minus. Cl माइनस से बहुत ज्यादा नेगेटिव है कैथोड, तो Na प्लस जाकर क्या होएगा? कैथोड पे चिपक जाएगा। सिमिलर प्रॉब्लम विथ Cl माइनस। Cl माइनस किसको चिपका हुआ है? Na प्लस को, लेकिन वो Cl माइनस को कौन दिखाई दे रहा है? एनोड। और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? +100। तो Cl माइनस भी क्या बोल रहा है? ये +1 को चिपक के क्या होएगा? उधर प्लस, तो हम जाकर के उसको चिपक जाते। तो अगर आप पानी में इलेक्ट्रोड नहीं डालोगे ना, तो NaCl डिसोसिएट होने वाला, NaCl सिर्फ डिसॉल्व होगा। ये याद रखना, डिसॉल्व में और डिसोसिएट में फर्क है, और ये सबको नहीं मालूम। एक अच्छा खासा क्राउड है जिसको अभी भी यही लगता है डिसॉल्व और डिसोसिएट एक ही है। पानी में नमक डाल दिया मतलब क्या होगा? मतलब नमक टूटकर Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाओगे, आजू बाजू वाले को पूछोगे, तुझे मालूम है पानी में सॉल्ट डालने के बाद क्या होता है? हाँ, वो डिसोसिएट हो जाएगा ना, तेरे को नहीं मालूम क्या? तो उसका आंसर सुनने का, स्माइल करने का और चुप बैठने का। ज्ञान देने मत चले जाना, अरे पागल सुन मैं बता रहा हूँ, वो डिसोसिएट नहीं होता है, डिसॉल्व होता है। फिर डिसोसिएट करने के लिए तुझे इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा, फिर NaCl डिसोसिएट। ऐसा सब बता दोगे तो क्या हो जाएगा? सब टॉपर बन जाएंगे, समझे? स्माइल कर रहा है बैठ के। Which college? God bless you. Pay attention, Baba. Electrolytic cell. Pay attention. Any cell in which electrical energy from external source is responsible for chemical changes taking place inside the cell. Any cell in which electrical energy from external source is responsible for, that is called, okay, electrical energy from chemical changes, ये आपको याद रखना है।
केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है ना, इसका एनोड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, और इसका कैथोड हमेशा क्या होगा? रिमेंबर दिस थिंग, एनोड इज ऑलवेज, कैथोड इज ऑलवेज, एनोड इज ऑलवेज, कैथोड इज ऑलवेज। अंडरस्टूड? किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमको हमेशा एनोड क्या मिलेगा? पॉजिटिव, और कैथोड हमेशा क्या मिलेगा? और हमने अभी 10th स्टैंडर्ड तक कौन सा सेल पढ़ा है? सिर्फ, तो इसीलिए अपने को क्या लगता है? एनोड, कैथोड, बट ऐसा हमेशा होता? क्लियर? हो गया ना लिख के? Done. Now the other type of cell is called as गैल्वेनिक सेल। इसका दूसरा नाम है वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल और वाई वोल्टाइक सेल? बिकॉज इट नीड्स वोल्टेज। इन सिंपल वर्ड, इट नीड्स पोटेंशियल। अब यहां पर क्या होगा? व्हाट हैपेंस ओवर हियर? पे अटेंशन। Any cell in which the chemical energy gets destroyed. Any cell in which chemical energy gets इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। यहां पर क्या हो गया? केमिकल एनर्जी डिस्ट्रॉयड एंड कन्वर्टेड इनटू। अब यहां पर एनोड हमेशा क्या रहेगा पता है? नेगेटिव, और कैथोड हमेशा क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग? यहां पर क्या हो रहा है? केमिकल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू। आपने अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल नोट डाउन किया है, उसमें आपने क्या नोटिस किया? इलेक्ट्रिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंजेस। तो वहां पर हमें लिखना क्या है? एक और चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एरो केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो गया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज चेंज्ड इनटू केमिकल। ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग? केमिकल एनर्जी
is changing into इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल चेंजिंग इनटू, यहां पर क्या है, इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है पेंसिल सेल, इसका एग्जाम्पल है आपका जनरेटर। कार बैटरी अलग चीज है, बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में, उसको भी हम पढ़ने वाले। कार बैटरी, इन्वर्टर जो हम यूज करते हैं घर पे, we'll be studying that in detail as well, but they are not example of galvanic cell. Pencil cell, ever ready, Duracell. Chemical is getting converted into electrical, and after few days, few months, what is happening, that chemical is getting all destroyed, and then the cell stops वर्किंग। तो हम वो पेंसिल सेल को निकाल कर फेंक देते हैं, उसके जगह पे नया पेंसिल सेल हम कनेक्ट कर देते हैं। वो पेंसिल सेल को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर कैसे बनता है पेंसिल सेल, कौन सा केमिकल उसमें यूज होता है, एंड वो केमिकल किस तरीके से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता रहेगा, सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं दिया आपने, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन इटसेल्फ इज अ सेल एंड दैट इज इट। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज बहुत लिमिटेड, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए सिर्फ उसको यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में, कमर्शियल पर्पस में उसका कोई यूज नहीं। Now we go to what is called as Faraday's first law of electrolysis. This is our last concept for today. जितना टाइम बचा है ना तुम्हारे लेक्चर के लिए, उतना टाइम पूरा लग जाएगा, तो ध्यान दो। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सिंपल थिंग आई टेल यू, आप जितना अपने कंसेप्चुअल लेक्चर में फोकस्ड एंड अलर्ट रहेंगे ना, आपका एंट्रेंस वाला लेक्चर उतना सिंपल एंड ईजी जाएगा। आपको कोई चीज़ बाहर से आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। जितने MCQs आने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम में, दे आर ऑल रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक कंसेप्ट ओनली ऑफ 11th एंड 12th। पॉइंट इज अपना बेसिक्स ही हिला हुआ है, तो अपने को हायर ऑर्डर या कंसेप्चुअल एप्लीकेशन उस कंसेप्ट का आता नहीं है। कंसेप्ट पे ध्यान, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। व्हाट इज दिस Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? व्हाट डज इट टॉक और व्हाट डज इट एक्सप्लेन? The law states that the amount of substance getting reduced or oxidized at an electrode
is directly proportional to the amount of substance to the amount of electricity passed through the electrolyte. The law states that the amount of substance getting reduced or oxidized. Substance एनोड पे या तो ऑक्सीडाइज होगा या कैथोड पे क्या होगा, सब्सटेंस या तो ऑक्सीडाइज होगा या फिर, और वो कब तक ऑक्सीडाइज होगा या कब तक रिड्यूस होगा, जब तक आप उस सेल से क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हाट इज इट? इट इज, यू नीड टू रिमेंबर दिस. It is directly proportional to what? To the amount of electricity passed through the electrolyte. Understand? करंट अलग है और चार्ज अलग है. करंट का मीनिंग अलग होता है, चार्ज का मीनिंग अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग अलग होता है. ओके? करंट can be a small value, current can be a large value. Small amount of current, please pay attention, small amount of current for a long duration, it is equal to large amount of charge. current small है लेकिन टाइम तो चार्ज ज़्यादा है. अच्छा, करंट ज़्यादा है, टाइम तो भी चार्ज. करंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, करंट और इज चार्ज, इट इज इक्वल टू एंड चार्ज इन अ बिगर एस्पेक्ट. चार्ज इन अ मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स व्हाट? तो कितना सब्सटेंस डिसोसिएट होगा और कितना सब्सटेंस डिसोसिएट होने के बाद ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे? अमाउंट ऑफ, सिंपल वर्ड में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आया समझ में? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी. तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? W is proportional to Q. W is proportional to, here W is the amount of substance, Q is quantity of charge. Amount of substance and quantity of आ रहा है समझ में? दिस इज जस्ट 10% ऑफ दिस लॉ. 10%. सर स्टेटमेंट आ गया, इक्वेशन भी आ गया, 10% ही है. क्या पता चला अभी तक? कितना सब्सटेंस डिसोसिएट. देखो पानी बीकर है, बीकर में पानी है, पानी में सॉल्ट है,
ये सॉल्ट डिसोसिएट तब होगा जब आप उसमें क्या डालेंगे, आपने इलेक्ट्रोड डाल दिया तो ही सॉल्ट डिसोसिएट होना स्टार्ट करेगा, वरना सॉल्ट डिसोसिएट। द मोमेंट आप इलेक्ट्रोड निकाल देते हैं सॉल्ट का डिसोसिएशन ही रुक जाता है। देखो पहले तो सॉल्ट का डिसोसिएट होना जरूरी है, बात को समझो, पहले सॉल्ट का क्या होना जरूरी है, एक बार वो डिसोसिएट हो गया फिर वो अपनी अपनी मंजिल की तरफ ट्रेवल करेंगे ना। Na+ जो Cl- से चिपका हुआ है वो कैथोड को देख चुका है, उससे समझ में आ गया है कि इसी पानी के अंदर जिसमें मैं NaCl के साथ चिपका हुआ हूं, इसी पानी के अंदर एक कैथोड है जो Cl- से बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो उसको क्या करना है, उसको पहले तो Cl- से ब्रेक सेपरेट अलग होना पड़ेगा, एंड देन दैट Na+ विल ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड। आ रहा है ना बात समझ में। तो आपने इलेक्ट्रोड पानी के अंदर डाल दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोड पानी के अंदर जाते ही आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा तो टाइम, ये वो टाइम है जिसमें पहले तो NaCl क्या होने वाला है और उसके बाद वो करेंगे अंडरस्टैंडिंग, श्योर, 100%। लिख लो ये, फिर आगे बताऊंगा। बट ये लॉ इज नॉट ओवर येट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द फैराडेज फर्स्ट लॉ। Noted down by everyone. देखो W is proportional to Q, okay, but Q is equal to I into T, where I is current in ampere, T is time in so W is equal to ZIT. Here your Z is electro, please don't talk, electrochemical, what is it, कांस्टेंट है वो, उसका नाम क्या है। अब देखो, इफ I is 1 ampere, time is 1 second, then W is equal to Z, yes or no। करंट अगर 1 एम्पियर है और टाइम अगर 1 सेकेंड है तो 1 into 1 is 1 and anything multiplied by 1 is the same number। तो अगर I और T 1 1 हो गया तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं दैट Z which is nothing but the electrochemical equivalent is the weight of substance getting reduced or oxidized when current of 1 ampere is
made to pass through the electrolyte in 1 second. बराबर है? आ रहा है समझ में? बराबर ना? W इक्वल टू Z कब? When I is 1 ampere and time is 1 second. क्लियर? समझा? हाँ, लेकिन पे अटेंशन, बट 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम. अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर इस पार्ट के अलावा आप क्या लिख सकते हो? व्हेन अ करंट ऑफ 1 कूलम इज मेड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. दोनों का मीनिंग क्या होगा? तो आपको स्टेटमेंट एमसीक्यूज में आ सकता है, पेपर में जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसमें आ सकता है कि W इज इक्वल टू Z व्हेन द करंट इज 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड और चार्ज इज 1 कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज. एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट. करंट इनटू टाइम इज चार्ज. Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज लिखा था हमने वहां, एंड Q क्या है? करंट इनटू. तो या तो आप 1 एम्पियर का करंट पास कर दो 1 सेकेंड में, या फिर आप 1 कूलम का चार्ज दे दो. अंडरस्टूड? श्योर? समझा? नोट डाउन. लेकिन लॉ अभी भी खत्म नहीं. हंस क्यों रहा है? हाँ, पे अटेंशन. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कौन बताएगा ये? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? स्टैंड एंड टॉक. 1.9 इंटू 10⁻³ kg इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज चाहिए. वन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. चार्ज ऑन. पे अटेंशन. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला तो 6.022. यस और नो? सो चार्ज ऑन 1 mole of electron is equal to 6.022 into 10⁻23 into 1.6 into 10⁻⁻19. टोटल कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम. समझे? अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना था? 96,500 कूलम्स. एग्जैक्ट वैल्यू 96,500, एग्जैक्ट वैल्यू है 96,478. 96,478. तो सर 96,478 जब पता है तो वो लिखो. 96,500 राउंड फिगर क्यों कर दिया?
क्योंकि जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ना, 1 मोल का संख्या बहुत ज्यादा है, 6.022 इंटू 10⁻23, कंटिन्यूअस सीरीज रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसमें क्या होगा, शुरुआत का जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो रेट ऑफ मूवमेंट है ये शायद थोड़ा स्लो, थोड़ा कम, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो आगे निकलता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें क्या सेट हो जाएगा, मोमेंटम। क्या सेट हो जाएगा, एंड ग्रेजुअली क्या कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनमें हम ये देखेंगे कि उनका रेट ऑफ मूवमेंट बहुत, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एग्जैक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू अपना 96,500 नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो चार्ज हम नोटिस करेंगे दैट विल बी वेरी क्लोज टू 96,500। अंडरस्टैंडिंग? दैट इज चार्ज ऑन, and this 96,500 is equal to 1 Faraday. It is equal to 1 Faraday. So charge carried by 1 mole of electron is equal to 1 Faraday. Charge on 1 mole of electron is equal to 1 Faraday. Understood? Yes. Yes or no? Yes. इतना क्लियर हो गया? अब देखो, जो ये हमारा Z है ना, Z, इसके लिए एक और फॉर्मूला है, E अपॉन 96,500, E अपॉन 96,500। अब यहां पर E क्या है, E इज केमिकल इक्विवेलेंट मास। क्या है E? What is E? And what is Z? Electrochemical. What is Z? What is Z? What is E? What is E? So we can say that electrochemical equivalent is equal to chemical equivalent mass upon 96,500. Yes or no? Yes. Electrochemical equivalent is equal to chemical equivalent mass. Electrochemical equivalent is equal to electrochemical equivalent is equal to upon 96,500. Understood? तो इसके बेसिस पे, सो देयरफॉर W इज इक्वल टू करेक्ट, यस और नो? Z के जगह पे क्या आ गया है, E अपॉन 96। तो हमें एक नया एक्सप्रेशन मिल गया है फॉर द सेम लॉ। यस और नो? नया एक्सप्रेशन। एक पुराना एक्सप्रेशन क्या था, W इक्वल टू ZIT, अब क्या मिल गया, W इक्वल टू, तो कभी Z दे देंगे सम में, W पूछ लेंगे, कभी E दे देंगे, W पूछ लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम में दिया क्या गया है, केमिकल इक्विवेलेंट मास या, समझे? लिखो इसको, नोट इट डाउन। बट स्टिल द लॉ इज नॉट ओवर, ओवर नहीं है। चलो ठीक है, ये क्लियर है। अभी देखो, ए भाई लिखा है कि फिर से नहीं लिखा रहेगा। ई का एक और फॉर्मूला है,
मोलार मास अपॉन वैलेंसी, मोलार मास अपॉन, याद रखना। तो अगर क्वेश्चन में ई नहीं दिया है और जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका नाम भी अगर दिया है तो आप उसका ई कैलकुलेट कर सकते हो। ये ई का शॉर्टकट है, केमिकल इक्विवेलेंट मास का ये शॉर्टकट है। क्या? मोलार मास अपॉन वैलेंसी। तो मान लो अभी हमको बोलते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है बच्चों? 27। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग? या मान लो अगर हमने कार्बन ले लिया, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है और वैलेंसी कितनी है कार्बन की, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन कितना होगा? अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अगर मान लो अगर कॉपर ले लिया हमने, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट 63.5 और इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना है? आ रहा है ना समझ में? यस और नो? तो आपको बोल सकते हैं कि इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेनिंग कॉपर क्लोराइड current of 5 ampere is passed, current of 5 ampere is passed for 6 minutes. Calculate the weight of copper getting deposited. तो अपने को यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? W इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 इंटू IT। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं ना E दिया हुआ है ना Z दिया हुआ है, W पूछ लिया है, वेट ऑफ कॉपर गेटिंग डिपॉजिटेड पूछ लिया है, E भी नहीं दिया है, Z भी नहीं दिया है, सम रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, मार्क्स मिल जाएगा मुझे। कॉपर तो बताया है ना, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने E नहीं भी दिया है तो E को ढूंढने का एक शॉर्टकट है, विच इज मोलार मास अपॉन वैलेंसी। और मोलार मास तो तुमको पता होना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट देम टू गिव यू मोलार मास इन 12th स्टैंडर्ड। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो नॉर्मली, हमें ये नहीं बोलता हूँ कि कोई रेयर एलिमेंट है उसका तुम मोलार मास याद कर लो, बट जो कॉमन एलिमेंट्स है आमतौर पर जिसको हम मेजरली अपने केमिकल्स में देखते हैं, वो जो 20-25 एलिमेंट्स का सेट है उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और वैलेंसी अपने को एकदम पक्का आना चाहिए। तो मोलार मास और वैलेंसी से हम क्या निकालेंगे? और फिर इक्विवेलेंट मास से क्या निकालेंगे? W। समझे? ये आया समझ में? वो प्रीवियस वाला पार्ट नोट डाउन किया था ना, उसके बाद में ये भी नोट डाउन कर लो। तो 4th फ्लोर पे है ना ये? 4th फ्लोर पे आ गया। हाईली डेवलप्ड डॉग हुआ लिख के। चलो टेक दिस थिंग। Calculate the weight of aluminium deposited when current of 3 ampere is made to pass through the cell containing AlCl3 for
6 मिनट्स। अभी इधर आई कितना है, टाइम कितना है, लेकिन अगर करंट आपका एम्पियर्स में है तो टाइम आपका किस में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 60 ना, 360 सेकेंड्स। अंडरस्टूड। अब एल्यूमिनियम का मोलार मास कितना है 27, वैलेंसी कितना है अभी बताया था, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, यस और नो। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, WAL इज इक्वल टू EAL अपॉन 965। कौन डिपॉजिट होने वाला है, एल्यूमिनियम। वेट ऑफ एल्यूमिनियम ढूंढना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन ओके, देन व्हाट यू विल डू, 9 3 जा इंटू अपॉन अंडरस्टैंडिंग आया समझ में। दिख रहा है कि नहीं, आ रहा है समझ में। Is it understood or no?